Guna Shivpuri Lok Sabha constituency geographically so big that on one hand you can feel the silk of Chanderi, on the other the attitude of Chambal, and then the taste of Malwa. Historically, the seat is a stronghold of the Scindia family because out of the 19 elections, 14 were won by the Scindia family. But this time, the fight is really tough because Rao Yadavendra Singh Yadav of the Congress is fighting against Jyotiraditya Scindia. Another poll battle for Union Minister Jyotiraditya Scindia, this time for the BJP. Mr. Scindia is contesting from his stronghold Guna for the 6th time in a row. In 2019 polls, Scindia, then with the Congress, suffered a shock defeat at the hands of BJP's KP Yadav. He switched to the BJP in March 2020 and is now pitted against Rao Yadavendra Singh Yadav of the Congress. Scindia is invoking his royal family's long-standing ties with the region where his grandmother Vijaya Raje and father Madhav Rao Scindia served as MPs. The family of Maharaj, as the erstwhile royal is known across the area, has been representing the constituency since 1950. Guna is historically a stronghold of the Scindia family, as Vijaya Raje Scindia, Madhav Rao Scindia and Jyotiraditya Scindia have all seen electoral success here. The Guna seat in the Gwalior-Chambal region has been held by 3 generations of his family over 37 years. From stage, Scindia outlines his achievements by saying there were no roads in this region and how he facilitated roads as well as electricity connections. लगातार हम भी जब जा रहे हैं तो पानी की एक तो बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों की पानी नहीं अनुराग, एक तो जिस उदाहरण के तौर पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं थी, जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा। ये 18 किलोमीटर की सड़क मैंने क्षेत्र में बनवाई थी। यहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ एक बिजली का खंभा नहीं होता था पूरे प्रदेश भर में। क्यों? खास करके हमारे इस मालवा ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई। यही सीज़न है जब वाटर लेवल कम होता है। इस सीज़न में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है। जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में, वो भर नहीं पाए। करीब 30-40% कम वर्षा हुई है। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। पारिवारिक सीट पर दोबारा लौटे हैं, पिछले चुनाव से क्या कुछ सीख कर आए हैं? जब लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहीं था लड़ने के लिए। ठीक है, पर मैं लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहाँ था। मैं 5 साल भी यहीं था। आपने अभी उदाहरण भी सुन लिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ आई थी शिवपुरी में, मैं सदैव यहीं था। और राहुल प्रियंका के दौरों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता आए उनका स्वागत है। हमारी अतिथि देव भवो की भावना है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है, पर स्वागत सत्कार के बाद जो भी मेहमान आता है उसकी विदाई भी होती है। आज तो आपने गाने से अपने सभा की शुरुआत की, तो मैं समझा नहीं, मतलब क्या उसके बाद कुछ गाने का रियाज तो नहीं शुरू किया? पर आपने सुना भी कि मैंने 2 लाइनों की बात बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं आगे चलता तो शायद जितनी भीड़ वहाँ थी वो भी शायद गायब हो जाती। मुझे तो गाना कर्ण प्रिय लगा। अगर आप मौसम आज थोड़ा अच्छा, आपके साथ बैठ के मैं चुनाव के बाद रियाज करूंगा। Geographically, the area is so large that it was already evening before we reached the Congress candidate Rao Yadavendra Singh Yadav. Rao Yadavendra Singh is the son of veteran BJP leader Rao Deshraj Singh Yadav, who was a 3-time MLA from Mungavali. The Congress strategy is to consolidate the Yadav vote, which had paid off for the BJP candidate in 2019. The Yadavs comprise a chunk of Guna's population and are expected to account for around 2.5 lakh votes. कई सारे मुद्दे हैं आपके इलाके में। सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जितना भी लोगों से हम समझ पाए। तो बतौर सांसद अगर आप चुने जाते हैं तो क्या क्या और प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं किसान हूँ। किसान होने के नाते पानी की जो समस्या है वो तो प्रमुख है ही, और खासकर हम इस क्षेत्र की भमोरी विधानसभा की बात करें
तो इस क्षेत्र में ये सबसे सूखा बेल्ट है और हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 4 बार इस क्षेत्र से सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री भी रह चुके, परंतु उन्होंने कभी इस ओर सिंचाई की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए कोई पहल नहीं करी। क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे कि आप अब दल बदल नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, आपके कुछ परिजन भी बीजेपी में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं दल बदल के जरूर आया हूं, लेकिन मैं सत्ताधारी दल को छोड़ के विपक्ष में आया हूं। और जो लोग जा रहे हैं वो विपक्ष से सत्ताधारी दल में जा रहे हैं, सत्ता की मलाई के लिए जा रहे हैं, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। Guna is all set for its big electoral battle. With Rizwan Khan and Atul Anuragwari for NDTV.